भेजा तो हाँ साइंस। आपने साइंस आशीष को भी बैठा दो। ऑन कर दिया? ठीक है सर। कुछ चीजें मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। सिर्फ डेफिनेशन लिख रहा हूँ। डेफिनेशन हाँ, आज कर लेता हूँ। एनीथिंग which occupies space and which has mass which has mass and occupies space and occupies space. okay. Atom, which the has smallest particle of matter, which cannot be which cannot be destroyed divided destroyed नहीं पाएगी. फर्दर डिवाइडेड divided The because that smallest particle of destroyed तो अलग ही matter. हो जाएगा divided ठीक है? Which which cannot be divided विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड उसके बाद और डिवाइड नहीं हो सकता तो फर्दर which डिवाइड cannot be divided. तो फर्दर लगा के बाद वो अच्छा रहेगा वो अच्छा रहेगा ग्रामर ढंग हो जाएगी पूरा ही भर रखा है आगे का तो जादू लगा रखा है Which cannot be divided sonal. Which cannot be further divided. Further word है. अब ये देखिए एलिमेंट which are composed of one kind of atom anything which is made of one kind of one atom. kind of atom ये भी कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस. particle of pure substance हाँ pure Which तो है क्योंकि उसी का पार्ट है. pure तो है Which is made of one kind of atom. matter ठीक है? उसे क्या कहेंगे? Element. There are 118 types of elements. इन आर बॉडी 118 110 types of elements element. अगला देखो. हाँ, कोई आया? शादी कौन है? तो उसके अलावा भी further divided प्रियांश. Definition बताओ. Matter which is made of चित्रांश बोलो. Matter which is made of only one kind of particle. सही है. Made of only one One. kind of particles kind of particles. All elements and compounds are प्योर सब्सटेंस pure substance. Elemental compound. उसी के तो सब डिवीजन है. कल देखा था कि नहीं? कंपाउंड चित्रांश. कंपाउंड को डिफाइन करो. जो टू substance को मिला कर टू elements को A element which when two elements When mix when two elements or come more elements two or more elements are intermixed chemically combined Chemically combined. in fixed ratio. Elements are chemically chemically combined in fixed ratio. They form combined in fixed ratio. fixed ratio. They form देखो कंपाउंड Compound. in fixed ratio. They form compound. कंपाउंड के अंदर किसी की प्रॉपर्टी नहीं है Compound does not contain the property of its constituent. कंस्टिट्यूट यौगिक अपने घटकों के गुण नहीं निहित करता. Compound Does not contain the property of any of its constituent. For example, ammonia, water, CO2.
NaCl. सही है। CO2 NaCl, ठीक है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट दिखा देना, ब्लू कलर का होता है, Yes. उसको CuSO4 कहते हैं, कॉपर सल्फेट। Quartz. वो भी हो सकता है, ये सभी हो सकता है, ये कंपाउंड है। अब देखो मिक्सचर, when two or more, रिधिमा पूरा करो, when two or more Non-reacting elements combine with each other in any ratio, they form mixture. आरुष पूरा करो, when two or more non-reacting Pure substances. pure substances, इनको कंबाइन करना पड़ेगा, प्योर सब्सटेंस को, इन एनी रेशो, ठीक है, गेट इंटरमिक्स्ड इन एनी रेशो, एनी रेशो, इट फॉर्म्स Mixture. Mixtures contain ठीक all है। the property of their constituents. then it forms mixture, जैसे कि बीका जी की ऑल इन वन मिक्सचर, ठीक है। इसका एग्जांपल हुआ सॉल्ट इन वाटर, Sugar in water. शुगर इन वाटर, Sand in water. सैंड इन वाटर, ये 3 मिनट डेटॉल इन वाटर, Oil in water. डेटॉल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा एयर किस में रखें, यही बात है। और सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक किस में रखें, फिर सी वाटर किस में रखें, Chalk in water. सोडा वाटर, So chalk in water. ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, चॉक इन वाटर, ब्लड, ब्लड तो नॉलेज और मिल्क Milk. ब्लड ब्लड तो इसमें आ जाएगा, वो भी आ जाएगा इसमें, कोल्ड ड्रिंक, ब्लड भी आएगा, मिल्क भी आएगा, सोप इन वाटर आएगा। चलो, मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स, Heterogeneous and homogeneous. Uniform mixture, आर आइदर हेट्रोजीनियस, और दूसरा कौन सा होगा, Homogeneous. होमोजीनियस और compound of contain हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, सर मिल्क Which are uniformly क्या बोलते हैं mixed. yes, mixture which has uniform composition, Composition. उसे क्या कहेंगे, Occurred homogeneous mixture. mixture has uniform Mixture with uniform composition. composition, it is evenly mixed throughout, ये evenly mixed है throughout, so called, इसलिए इसको क्या कहा गया है, Homogeneous mixture. होमोजीनियस मिक्सचर। ऊपर वाले में होमोजीनियस मिक्सचर कौन है, एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, ये बहुत स्टेबल होते हैं, और शुगर इन वाटर। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये ब्लू कलर का मिक्सचर जो आपको दिख रहा है, ये कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर है, ये भी मिक्स होमोजीनियस मिक्सचर है। तोड़ भी गया. और डार्क हो गया है, हो गया इतना, ये कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर, ये बिल्कुल ऐसा ही है जब से रखा है 5 दिन से, कॉपर सल्फेट इन वाटर। और इसके अलावा सी वाटर, कोल्ड ड्रिंक, सर ये सी वाटर क्या हुआ,
होमोजीनियस मिक्सचर, सोडा वाटर। सोडा वाटर जानते हो यस क्या होता है? वाटर में CO2 मिक्स कर दो तो सोडा वाटर में डाल देते और उसमें फिर अपने घर में ले जाके खुद ही फ्लेवर बनाओ। जैसे शिव शक्ति सोडा, वो जब तुम उसमें लेमन कहोगे तो लेमन डाल देगा, कोला कहोगे तो कोला डाल देगा, जो फ्लेवर कहोगे डाल देगा। उसके पास ये ही है, इसे कहते हैं सोडा वाटर। किसी को सोडा कहा गया, इसको कार्बोनेटेड ड्रिंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक, वाटर भी कहा था कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड और मोर बस CO2 मिक्स कर दिया, गैस मिक्स कर दी। बहुत देर तक मुंह से CO2 निकल रही, पानी में डालो स्ट्रॉ के थ्रू तो भी सोडा वाटर बन जाएगा। हाँ। और फिर उसी में कोई फ्लेवर डाल के मेहमान को पिला दो ना। रिएक्टिंग प्योर अब जरा देखिए इंट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो साइंस पढ़ा नॉन यूनिफॉर्म सब्सटेंस It has mixture which has non-uniform composition. It is not evenly mixed throughout. so called heterogeneous mixture. Throughout, so-called heterogeneous mixture. ये लिखना चाहिए था, अभी मैं भूल गया, ये रही गया था। इसमें लिखना चाहिए इट इज वेरी स्टेबल। इट इज वेरी स्टेबल। इट इज आइदर लेस स्टेबल और नॉट स्टेबल। इट इज आइदर लेस स्टेबल और नॉट स्टेबल। तो लेकिन कोई भी एटम तो लेकिन स्टेबल नहीं रहता ना। लेस स्टेबल, एक इसके दो आगे बनेंगे, एक कोलाइड और एक सस्पेंशन, इसके डिवीजन आइदर लेस स्टेबल और नॉट स्टेबल। तो शिवांग इसमें डिटॉल इन वाटर एंड सोडा इन वाटर ये बन जाएंगे, ये सोप इन वाटर, वो कोलाइड हो जाएंगे। वो 2-3 दिन बाद बैठता है और कुछ तो सैंड इन वाटर तो बैठ जाएगा सस्पेंशन इसके आगे के दो। अच्छा एग्जांपल इसके क्या क्या हुए? दैट इज सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर, और बोलो मिल्क और और ब्लड ब्लड, chalk in water, dust in एयर, dust in air बोला था। वाटर डर्टी वेलास्टिन एयर का है तो चलो अभी तुमको मैंने थोड़ा सा बता दिया है, अब हम चैप्टर की शुरुआत करें। शुरू अब चैप्टर शुरू होगा, मतलब बेसिक नॉलेज आपको मैंने दे दी। नाउ यू आर नहीं ध्यान से कराया, थोड़ा आइडिया लगता है तब चैप्टर फिर समझ में आता है। अब देखो इसमें तुम कुछ भी नहीं बदल सकते, ये बेसिक फ्रेमवर्क है, इसमें तुम इधर उधर नहीं कर सकते, ज़्यादा ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी इधर उधर कर सकते हो। बोलो हाँ वो तो लिखा है। चलो नाउ कंपोजिशन। अच्छा हाँ मैं 9th बुक में देखा था उसमें ये पूरा 9 का एक चैप्टर है, 9 के 2-3 चैप्टर तुम लोगों को पढ़ा दिए, पूरा पढ़ा देना और 9 में तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। कोई अच्छी जगह ट्रिप बना देना, घूमना फिरना। 9 में तो हमारा और ही आ जाएगा फिर। जब मैं 10th वालों को यहाँ से भेजता हूँ तो उनको 11th का पढ़ा के भेज देता हूँ। सब बच्चे 12th होते ही सब आई सब जगह IIT में आ गए, बहुत सारे बच्चे यहाँ से पूरा पढ़ा के देते हैं। मैं BSc तक के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत अभी तक नहीं, अब नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो भी आप हमसे पढ़ोगे ना आपके आगे का फाउंडेशन है, बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ, कोई बताता नहीं, रटाते हैं लोग दूसरे को।
अब आगे देखो, इतना नोट कर लिया? यस Homogeneous. It is very stable. नाउ अब हम आते हैं प्रोब एंड पाउंडर पर। Probe and ponder. ठीक है प्रोब एंड पाउंडर, ठीक है? जानकारी हासिल करें और खोजें। Salt and water, sugar and water. ठीक है, चलो। What is meaning of probe? To ask and question. Probe का मतलब क्या होता है? डू To ask सवाल पूछो और खोजो। and search. Which of the entities, ऊपर लिखी हुई चीजों में कौन सी चीज मैटर है और जो नहीं है? ऊपर देखो, ऊपर तुम्हें बहुत सारी चीजें दिख रही हैं यस चित्र में। इसमें क्या तुम्हें मैटर दिख रहा है शिवांग और क्या मैटर नहीं है? सब कुछ मैटर ही है सर तो इसमें एक चीज तुमको दिख रही है, लोगों के चेहरे पे हैप्पीनेस, क्या वो मैटर है? हैप्पीनेस नो। नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नॉट द मैटर, द फीलिंग्स आर नॉट द मैटर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी वेट एंड इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। तो मैटर नहीं है। नहीं, ठीक है। फुटबॉल इज ए मैटर बट हैप्पीनेस इज नॉट अ मैटर। देखो, कुछ तो कोई नहीं रहा है इसमें फुटबॉल क्या है? इट्स मैटर मैटर, लेकिन जो फीलिंग होती है क्या वो मैटर होती है? नो सर हैप्पीनेस इज नॉट मैटर। आगे देखो, अगला सवाल। हाउ कैन एलिमेंट्स बी कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड? क्या तुम्हें ये मालूम है कि एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं इन फिक्स्ड रेशो? यस, एलिमेंट्स केमिकली, अगला क्वेश्चन का आंसर देखो, एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड रेशो टू फॉर्म कंपाउंड। निशान, एक एलिमेंट, एक कंपाउंड का एग्जांपल दो। कंपाउंड का हाँ, जरिए तो जानते हो, कैसे जानते हो इतना? Now, how could the discovery of compound that absorbs carbon dioxide from air contributes to solving environmental challenges? तो अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि अगर CO2 हटा दिया जाए एटमॉस्फेयर से तो क्या हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाएगा? हाँ, नो सर ज्यादा CO2 होगा हमारे एटमॉस्फेयर में तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है। और अगर मैं CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे पेड़ लगा दूं, पेड़ CO2 लेते हैं और O2 देते हैं। तो ये मुझे बताओ कैसे तुमको पता चला कि पेड़ CO2 ले रहे हैं और हमें क्या देते हैं उसके बदले में? इसलिए हाउ कैन यू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम? क्या तुमको ये बात पता है कि मिक्सचर को फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है? यस सर म्यूजिकल जैसे क्या प्योर सब्सटेंस को कर सकते हो? अगर मैं तुमको वाटर दे दूं तो क्या O2 से अलग कर पाओगी? नो O2 अलग नहीं कर पाओगी। लेकिन अगर मिक्सचर दे दिया जाए वाटर प्लस सॉल्ट तो क्या उसे अलग कर सकते हो? यस सर गरम कर गरम कर सकते हो, दैट इज सॉल्टी वाटर है। अगर इसे गरम करो तो क्या सॉल्ट अलग हो जाएगा? यस सर सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड। इसका क्या मतलब है? ऐसे समुद्र के पानी से सॉल्ट ऐसा होता है, वो इवेपोरेशन से अलग कर लेते हैं, गुजरात में होता है ऐसा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि क्या मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है? यस सर और मैं तुमको CO2 दे दूं, तुम उसमें से कोयला अलग कर लोगे? नहीं कर पाओगे। CO2 से तो कोयला नहीं अलग कर पाओगे ना। कंपाउंड में से तुम अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर में से चीजें अलग कर सकते हो। अगर मैं तुमको मिक्सचर दे दूं रिद्धिमा तो तुम गाठिया गाठिया छा के खा लोगे और मूंगफली छोड़ दोगे। इसका मतलब है तुम फिजिकल मेथड से उसे अलग कर रही हो। Sand in water, oil in water. तो अब अगली चीज जो रिद्धिमा ने बताई उसके बारे में देखो। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर
इन दोनों में अंतर क्या है? When two or more elements chemically combine in fixed ratio. सर कंपाउंड में केमिकली कंबाइन होते हैं मिक्सचर में any ratio, उसमें नॉन रिएक्टिंग होता है in fixed ratio it forms compound. जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया एक निश्चित अनुपात में करते हैं तो यौगिक कहलाते हैं। अब दूसरा देखो, व्हाट इज मिक्सचर? मिश्रण से तुम क्या समझती हो? जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ जो आपस में रासायनिक अभिक्रिया ना करें और किसी भी अनुपात में मिला दिए जाएं, वे मिश्रण कहलाते हैं। जैसे बी का जी का ऑल इन वन। When two or more pure non-reacting pure substance, non-reacting pure substance are intermixed. In any ratio. बहुत अच्छा, in any ratio it forms mixture. ये बात कंपाउंड जो होते हैं वो उसकी कांस्टेंट की प्रॉपर्टी जो पानी में मिल जाए वो आयनिक कंपाउंड है। जैसे NaCl जो पानी में ना मिले वो कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब कंपाउंड भी तरह से, जैसे ऑयल नहीं मिला पानी में तो कंपाउंड भी दो तरीके के। अच्छा ये बताओ, जो कंपाउंड है इज इट कंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट? ये देखो इस चीज ये इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड Do not convert. as entirely different property. Looks like ठीक है? Then its constituents. कंस्टिट्यूएंट का मतलब घटक यानी उसके जो कंपोनेंट्स हैं। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब उसके अंदर अंदर क्या क्या है। जब तुम ब्रेड खरीद कर लाते हो उसमें एक जगह लिखा रहता है कंस्टिट्यूएंट, इसमें पाम ऑयल है, व्हीट है, शुगर है, सब लिखा रहता इंग्रेडिएंट्स है। लिखा है। वो चीज इंग्रेडिएंट्स जिससे मिलकर बना। और ये बताओ, मिक्सचर कंटेन्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। अगर तुमने चीनी मिलाई तो चीनी का भी गुण आ जाएगा, नमक मिलाई तो नमक का भी। तो मिक्सचर में क्या होगा? मिक्सचर contains properties of all its constituent. शिवांग, क्या तुम किसी मिक्सचर को उसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट में सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड से? Yes, sir. उबाल कर, छान कर। क्या तुम गेहूं में से स्ट्रॉ को या हस्क को, भूसे को अलग कर सकते हो? Yes, sir. किस मेथड से? विनोइंग से, हवा डाल के ऐसे कर लो। तो इसको तो तुम अलग कर सकते हो, लेकिन क्या तुम वाटर में से O2 अलग कर सकते हो? No, sir. तो देखो ये it can be separated into its constituent by chemical methods. केमिकल मेथड का मतलब है कि तुम अगर इसमें ये है पानी डाल दो, ये देखो इसमें दो टर्मिनल है, पानी भर दो और इन दोनों को बिजली से लगा दो सेल से, तो एक जगह हाइड्रोजन निकलेगी, एक जगह ऑक्सीजन। इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा कराया है ना हमने यहाँ पर? तो कराया नहीं? नहीं कराया था। समझ में आ गई बात? इसका क्या मतलब बताइए कि वाटर को भी अलग किया जा सकता है, लेकिन उसको किस मेथड से अलग किया जा सकता है बताइए? वाटर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय केमिकल मेथड। कौन सा मेथड है? केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। और जबकि उसको किस मेथड से अलग किया जा सकता है? फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है। No.
जिसमें मैं पानी डाल देता हूँ और पानी को अलग कर दिया जा सकेगा, इसमें पानी भर देता हूँ, पानी की कमी इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय केमिकल मेथड। फॉर एग्जाम्पल बताइए श्रेया, कैसे? जैसे वाटर कैन बी सेपरेटेड इनटू H2 and O2 बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इसका एग्जांपल है। कैसे तुमने तोड़ा? एग्जांपल बताओ। वाटर कैन बी, ठीक है, कन्वर्टेड, किसमें तुमने इसे कन्वर्ट किया बोलो? इनटू H2 and O2 बाय इलेक्ट्रोलिसिस। और ये मुझे बताओ, जो मिक्सचर है आशीष, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय, फिजिकल बताने लेट कर रहे हो, फिजिकल मेथड। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट बाय कौन से मेथड? फिजिकल मेथड। अब जरा चेक करें, एग्जांपल बताओ। सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट इन वाटर बाय इवेपोरेशन। रख दो, अभी थोड़ी देर में देखोगे, इसी में मैं रख दूं, पानी उड़ जाएगा, नमक बचेगा। 3-4 दिन 5 दिन लगेंगे। मिक्सचर हुआ कंपाउंड हुआ, कंपाउंड मिक्सचर लिखो, तो मिक्सचर जैसे सॉल्ट इन वाटर कैन बी सेपरेटेड इनटू सॉल्ट एंड वाटर। जो वाटर ऊपर उड़ रहा है उसको, उसके वेपर्स को कंडेंस करके वाटर अलग अलग भी गिरा सकते, ऐसा होता है। मान लो जैसे इसके ऊपर से वाटर निकला, तो वाटर निकलने के बाद ये कंडेंसर है, ये लगा दिया, और इसके बाद क्या लगा दिया? ये लगा दिया, और फिर क्या लगा दिया? ये लगा दिया। तो फिर क्या होगा बताइए? मान लीजिए जैसे वाटर इसमें से निकला, तो वाटर निकलने के बाद एक ऐसे बर्तन में रख लो। तो ये क्या? मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से वाटर निकला, तो अब इसमें क्या करिए? कोनिकल फ्लास्क में डाल दो। किस फ्लास्क में डाल दो? कोनिकल फ्लास्क। ये देखो, ऐसा इसमें पानी भर लिया। देखो इसमें क्या किया आपने? पानी भर लिया, भरेंगे नहीं। मान लीजिए इसमें ये लगा दिया कॉक में, ये, और वहाँ टप 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 पानी गिरता रहेगा, एकदम प्योर वाटर ही जाएगा। सही है? कैसे गिर जाएगा? देखो इसमें से अगर तुम इसे उबालोगे तो साल्ट इसमें बचेगा, और जो इसकी भाप है वो उसमें से आएगी। तो जब भाप इसमें से निकलेगी, इसमें 2 पाइप देख रहे हो, एक तरफ से बिल्कुल आइस वाटर डालो, एक तरफ से निकालो, तो क्या भाप पानी में बदल जाएगी उसकी सारी, और यहाँ से गिरेगी। इसको किसी बर्तन में इकट्ठे कर लो, टप 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 टप, गिरते ही रहेगी। बोलो पूरी बात समझ में आ गई? अगर तुम्हें इसे करना है तो इसके लिए तुम्हारे पास एक स्टैंड है। क्या चीज है? स्टैंड। तो पहले एक स्टैंड लो, ऐसा स्टैंड ले लीजिए। सबसे पहले आप क्या लीजिए? और स्टैंड के बाद आप क्या करेंगे? एक ट्राइपॉड लो और एक वायर गेज लो। ट्राइपॉड वो वाला। ये देखो, और ये वायर गेज ले लो। इसके बाद इससे तुम इसे हीट कर लो। क्या करो? हीट कर लो। ये सब कराते हैं 9th में, कराते हैं 9th 8th में ही पहुंच गया तो मैं क्या करूँ? ये देखो ऐसा कर लिया, और फिर इसके ऊपर क्या रखा है यहाँ पे? ट्राइपॉड स्टैंड रखा, और ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे क्या रखा? ये रख दिया बर्नर पे ऊपर करके उस पे रख दिया, और इसके ऊपर क्या लगा दिया बताइए? कोनिकल फ्लास्क। ये सब ऊपर ले जाओ, सही है? और फिर इसको ऊपर रखो। इसके अंदर क्या रख दीजिए? कोनिकल फ्लास्क। ये देखो, ये करेक्ट कह रही हैं, इन्होंने सब किया हुआ है, इनका पुनर्जन्म है। ये आइंस्टाइन की। बहुत बड़ी बात है, ऐसे पहले से ही कैसे सब जानती हैं, और बच्चे तो नहीं जानते। और ये देखो, इसको इसमें आके बिल्कुल फिक्स कर लो कि गिरे नहीं, सही है? फिक्स कर लिया। इसके बाद इसका तो ये भी यूज नहीं, ऊपर वाले का। इतना करने के बाद यहाँ लो, अभी तुमको दिखाया ना, ऐसा करने के बाद यहाँ पे क्या रख दो?
दूसरा बर्तन तो आपको एक उधर से पकड़ना ही निकल लाओ पड़ेगा। जरा, उधर से उठा फिर आपको तो पकड़ना ही पड़ेगा। पकड़ना कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए ना, सर बना के दिखाओगे क्या? वो इधर इनमें से कोई ला दो कपड़ सर सब करके दिखाओगे ये टाइगर? सर करके कॉपर दिखाओगे? सल्फेट करके दिखाओ। सर कॉपर एक कहते हैं बार तुम्हारी छोटी क्लास है 1.5 घंटे की, कितनी महंगी क्लास है। एक क्लास का 40 रुपए तुम दे रहे हो, पता है आज की डेट में। 40 रुपए। समझ में आया? पूरा मेथड समझ में आ गया कि कैसे है? और इसमें से आ जाएगा वाटर, इसमें सॉल्ट, इसमें ठीक है। पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं? सबने देख लिया? अब इसको हटा दे रहे हैं। पानी ऊपर रहेगा, होगा और उसमें से पानी निकलेगा। तो हम इसमें से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वाटर उड़ जाएगा, वाटर भी तुम्हें मिल जाएगा। और उसे किस मेथड से तुमने अलग किया बताओ? फिजिकल दैट इज बाई Thermolysis. बॉइलिंग या Boiling. हीटर से, ठीक है। Heater. लिसिस कुछ नहीं हुई है, आप इसे लिसिस मत बोलिए, ओके। क्योंकि ये एक फिजिकल मेथड है। तो इसमें कोई चीज हीटिंग वैसे हीटिंग से आते हैं हीटिंग ठीक heating क्या है। है? चलो आगे का मेथड देखो। सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड इनटू सॉल्ट एंड वाटर बाय By बॉइलिंग। boiling. किससे किया? बॉइलिंग भी Boiling. लिख सकते हो और हीटिंग इवेपोरेशन। अच्छा ये मुझे बताओ कि कुछ और भी इसके पॉइंट्स हैं। ये मुझे बताइए कि जो कंपाउंड्स है जैसे वाटर, क्या उसके फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं? और मैं चाशनी दे दूं तो एक गाढ़ी चाशनी और एक पतली चाशनी है, बोलो उनका सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा कि नहीं? बहुत गाढ़ी होगी तो बहुत देर में उबलेगी। तो क्या कंपाउंड का एक जैसा टेक्सचर होगा? तुम इनके यहाँ चाय पियो और इनके यहाँ चाय पियो और इनके यहाँ पियो, तो कहो ये फीकी चाय पिला दे और ये आपको चीनी पे चीनी, चादर दूध डाल के मक्खन भी डाल दे, एक्स्ट्रा पनीर भी डाल दे 2 पीस चाय में। हो सकता है अमीर हो, क्या पता। चाय में पनीर पनीर खोया डाल के दे देंगे, खाओ काजू पड़ा चाय। ये देखो मेरा कहने का मतलब है जो ये देखिए कंपाउंड्स कैन कंपाउंड है। तुम यहाँ का पानी पियो, अमेरिका का पानी पियो, जाके मार्स में मंगल ग्रह पे पानी पियो, सब एक पानी। इवन यूनिवर्स के किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, कंपाउंड है फिक्स्ड टेक्सचर। कैसा होगा? छूने में एक जैसा, फिक्स्ड कलर, फिक्स्ड ऑर्डर, एक जैसा उनकी महक, गंध, सब कुछ फिक्स है। सब कुछ फिक्स्ड है। टेस्ट इवन टेस्ट भी है, ऑर्डर, महक, फिक्स्ड टेस्ट। लेकिन मिक्सचर में ऐसा होगा, इस गुरुद्वारे में तुमने अगर शरबत पिया, उस गुरुद्वारे में दोनों में अलग है। आज तो गुरु नानक जयंती है ना, अभी नहीं, पहले क्लास करके फिर हम लोग शरबत पीएंगे। कंपाउंड्स है, देखो फिक्स्ड टेक्सचर, सुनो, कंपाउंड छूने में एक जैसे हैं, फिक्स्ड टेक्सचर, फिक्स्ड ऑर्डर। देखो फिक्स्ड टेक्सचर, फिक्स्ड ऑर्डर, फिक्स्ड टेस्ट। अगर टेस्ट कर सकते हैं, महक, मैं जो आपने लिखा होगा महक या गंध, अच्छा तभी उसमें क्या होता है, उसमें ऑर्डर लिखते हैं ऑर्डर, फिक्स्ड कलर, डिओड्रेंट इसके इसलिए डीऑर्डेंट, जो ऑर्डर को हटा दे उसको डीऑर्डेंट कहते हैं। अब देखो फिक्स्ड कलर एंड टेस्ट, इट हैज फिक्स्ड डेंसिटी, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका गलनांक और क्वथनांक समान होता है। फूड और कलर है। करेक्ट। जबकि मिक्सचर में क्या होगा? किसी के मिक्सचर में, अलग किसी अलग की होता है। चाय में कुछ मिलेगा, किसी की चाय में कुछ। लौंग वाली मिक्सचर। चाय, इलायची वाली चाय, अदरक वाली चाय, ठीक है, देख लो, इसे note करो। स्पेशल मिक्सचर हैज वेरीड टेक्सचर, एक जैसा नहीं मिलेगा, अलग अलग तरीके की। परिवर्तनशील, वेरीड टेक्सचर, ऑर्डर, टेस्ट, कलर, ठीक है। और इसके अलावा वेरीड टेक्सचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ इसका अलग अलग होगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी सब कुछ अलग अलग होगा। ओके, इसके अलावा यहाँ तक की बात हो गई। मिक्सचर की एक और प्रॉपर्टी देखिए, और कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी देखेंगे।
नाउ इतनी सी बात है, बस यही 4 पॉइंट। कितने पॉइंट हो गए? 4 है। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर ही चल रहा है। इसका एग्जांपल बताओ, ठीक है? व्हाट इज दिस एग्जांपल? CO2 दैट इज CO2 वाटर। H2O और ये इसका एग्जांपल दैट इज CO2 इन वाटर, सोडा, सोडा वाटर। कार्बोनेटेड वाटर, CO2 इन वाटर, जिसको क्या कहते हैं? कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर। जिसमें फ्लेवर डाल के लोग कोका कोला बनाते हैं। सर जब CO2 वाटर में नमकीन, मिलता है, तो सोडा कलर, बनता है। टेक्सचर, हाँ, मिक्सचर। इन दोनों को मिला दिया जाए तो सोडा वाटर। जो वो वाटर बाजार में मिलता नहीं, सोडा वाटर वाटर यही है। फिर इसमें तुम लेमन और चीनी डाल दो तो जिनका बन जाए। सर सोडा और अगर तुमने इसमें कोला का फ्लेवर डाल दिया तो कोक बन जाएगी। वो घर में ही बना सकते हो। उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी। बहुत सारे लोग आजकल एयरफोर्स के लोग हैं, वो सिर्फ अपने घर में खुद का फ्लेवर देते हैं। सोडा वाटर बाजार से लाके रखते हैं। जो जैसा कहता है, कल मिरिंडा पीना है, लो ऑरेंज पियो। अच्छा तुमको लिम्का पीना है, नींबू लेके पियो। सर मतलब सर इसकी तो एक अलग से सोडा बनाने, सोडा अपना वाटर फ्लेवर डालो। अब कुछ लोग तो अलग अलग से जो पाउच नहीं आता है, मसाला पाउच, वही डाल देते हैं। उससे वो कहते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक मसाला। अमेजोन पे मिलता है अलग अलग। वो 12 फ्लेवर एक साथ देता है, 20 रुपए में 12 फ्लेवर। घर में बनाओ, एक मशीन भी पाउच आ खोलो, सोडा वाटर में डालो, लिम्का बनाओ, लिम्का फ्लेवर कोला। सर सोडा वाटर भी घर पे बना दें सर, कुछ सोडा मशीन वाटर आती घर में है, लोग बनाते हैं। मशीन अब अगला आती है। देखो, सर हाँ, यहाँ पे भी तो बनाते हैं ना अंदर में। थोड़ी ना वही बन जाएगा। वो भी सब बनता है। बनाते वही तो बनेगा सोडा वाटर से। फ्लेवर ही फ्लेवर तो डालो। वो दोनों को मिक्स कर दो। मिरिंडा के बस आपको कंसंट्रेटेड 4-5 बूंदे डालनी, मिरिंडा बनेगा। ज्यादा नहीं डालना पड़ता, बूंद पे डालना पड़ता। और चम्मच में तो पिंच में, चुटकी में। अब अगला देखो, तुम्हें समझ में आ गया? मेरा कहने का मतलब है कि पहले पेज का तीसरा सवाल देखो, वो हमने यहाँ करा दिया। सोनल कह रही थी ना कि पहले पेज का तीसरा सवाल करा, वो हो चुका है। How would the discovery of compound कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे तुमने एनवायरनमेंट से CO2 को हटा करके अपने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को फिक्स की? क्योंकि तुमको मालूम है कि मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है, तो तुम CO2 को उसमें से ले रहे हो। दैट इज CO2 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एंड द एनवायरनमेंट कैन बी क्लीन्ड। ये बात समझ में आई? ये चीज सोनल बहुत पहले समझ चुकी थी, इसीलिए वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट और नेचुरलिस्ट है। अरे वाह, हम एनवायरनमेंट से CO2 लेके सोडा वाटर बना के पी हैं। सोडा वाटर बना के वो पी रही थी, इसीलिए सोना मांगचुक का नाम पे। अब अगला देखो, मैं जानता हूँ उनको, ठीक है? उनको ऐसे देखा हुआ है। उन्हीं का नाम फंगसुक वांगडू था। हाँ सर पिक्चर वो में। बहुत ही जो पिक्चर बनी थी आमिर खान, 3 इडियट। सोना वांगचुक का ही नाम फंगसुक वांगडू था। क्या बोला? चल, ये ऐसे यूट्यूब पर देखा सभी है। जानते हैं कि कोई कहेगा थोड़ी। अब ये देखो, दैट इज वी कैन एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ये इन्वायरमेंटल। लेकिन CO2 एब्जॉर्ब कैसे करेंगे? एब्जॉर्ब, कुछ CO2 एब्जॉर्बर होते हैं, या रिड्यूस करो किसी भी मेथड से CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सॉल्व environmental problem। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट पेज पे मैटर लिखा है और पूछा जा रहा है इनमें से कौन से मैटर है, तो क्या लिखोगे? बोल्ड हेडिंग में मैटर लिखा है तो लिख देना ऑल ऑफ दीज आर मिक्स्ड मैटर। अब अगली हेडिंग पे आओ, व्हाट आर मिक्सचर? मिक्सचर क्या होता है? अगली हेडिंग देखिए, प्रत्युष, तुमको इसमें पोहा मिक्सचर लग रहा है कि स्प्राउट सलाद? दोनों ही। दोनों हो सकते हैं, सलाद भी और ये पोहा भी। ठीक है, तो मिक्सिंग, जब कोई भी चीज जब मिक्स कर देते हैं तो वो मिक्सचर कहलाती है। मिक्सचर लेकिन वापस में रिएक्ट करके कोई दूसरा कंप्लीट तो केमिकल नहीं बनाते।
The things from which mixture is made is called its components. Word component देखो, कंपोनेंट तो उसके इंग्रेडिएंट्स उसके ingredients को component भी कह सकते हो Component. और constituents भी कह सकते कंस्टिट्यूएंट्स हो। देखो ज़्यादा कन्वीनियंट क्या वो रहेगा सर? मिक्सर जिससे दोनों बनता है एक ही उसके बात। components को क्या बोलते हैं? जिससे बना है उसको उसके घटक कहते हैं या कंपोनेंट कहते हैं, कंस्टिट्यूएंट कहते हैं। The things from which mixture is made is called its components. Components क्या होते हैं बोलो? The individual substances that make up a mixture. The individual substance. ये बिल्कुल definition ही बता Mixture रहे हैं। are called components. Substance which make up a mixture are called its components, Or constituents. ingredients, Or constituents. और constituents. इन्हीं को घटक कहते हैं। अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग तुमको कहीं इसमें नॉन यूनिफॉर्म दिख रही है? Yes, sir. जो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं, कुछ यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं, ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है। कहाँ बताओ? अभी आपने देखा था ये कॉपर सल्फेट इन वाटर कैसा मिक्सचर है? यूनिफॉर्म मिक्सचर है। और एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा, जैसे डेटॉल इन वाटर। अब मैं क्या लेने जा रहा हूँ? Dettol. डेटॉल इन वाटर। उसमें थोड़ा डेटॉल डाल देता हूँ। आपके पास है, sir? आपके पास है? डेटॉल तो होगा ही ना। यहाँ कोई गिरता है क्या? यहाँ पे तो सब कुछ ही होगा, यहाँ क्या नहीं। चल, so we should put सर डेटॉल में ऐसा क्या होता है जो लगाने के बाद जलते रहता है? करेक्ट। देखो साइंटिफिक क्वेश्चन, ये सब पूरी बुक पढ़ के आए हैं आज। क्या? पूरा मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आप लोग प्रभावित हो गए इनसे। हाँ. ये डेटॉल से चोट से जलती है हमेशा। देखो हमने इसमें क्या डाल दिया? Dettol. डेटॉल की तो बोतल ही है। डेटॉल को मिक्स कर देंगे और उसको मिला देंगे। हाँ बस तो है इसमें क्या है ना, मैंने और भी चीज डाली है। ये मिल गया। और एक में क्या डालेंगे बताओ? सर इसमें तो पार्टिकल दिख रहे हैं मेरे को। ये हेट्रोजीनियस है। डेटॉल इन वाटर कैसा है? और Heterogeneous. एक हमने टॉट ग्लास लिया Copper sir. जिसमें टॉट पी जाती है, और एक क्या ले लिया। और अब देखो इन दोनों में ही मैं लाइट डालने जा रहा हूँ। Light. टिंडाल इफेक्ट देखिए, दोनों को इसमें रख दिया और मैं इन दोनों पे लाइट डालूंगा। तुमको बताना है किसमें ये हेट्रोजीनियस है, डेटॉल इन वाटर है, और ये होमोजीनियस। सर मेरे को इस वाले में दिख रहा है। अभी. अभी डाला ही कहाँ? अभी कहाँ? ऐसे दिख रहा है, sir। नहीं, ऐसे मत करो। देखिए उसमें। नाउ अब देखिए, ज़्यादा बगल मत करो नहीं तो तुम्हारे हाथ जाएंगे। अरे सर इसमें तो बोलना ये देखो ये क्या है? लाइट। लाइट। तो मैंने दोनों में लाइट डाली, तो लेजर तो लाइट। पाथ ऑफ लाइट किसमें दिखेगी और किसमें नहीं दिखेगी। डेटॉल इन वाटर फिर से बना, ये वाटर थोड़ा सही नहीं है सर मैंने कहा आपने बहुत क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, इसमें नमक मिल गया, इसकी प्योरिटी चली गई है। अच्छा सर आप तो अब हम क्या करेंगे, एक फिर से डिटॉल सॉल्यूशन बनाएंगे, किसी के बोतल से अच्छा सा पानी ले। हम तो बोतल ही मिला है लो। सर को आपने नंबर पानी रखा कि मैं देखो ये जब हमें लगा काम बन जाएगा, लेकिन नल के पास जाना ही पड़ेगा। मत करो ऐसा, वो फिजिक्स पढ़ रहा है केमिस्ट्री की क्लास में। तेज बहुत है, मालूम है? गन चला रहा है सर। जन्म से ही जीनियस है, कहते हैं भूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। किसके पाँव? भूत के भूत के। भूत के तो पाँव ही उल्टे होते हैं। उल्टे होते वो दिख जाते हैं, इसके उल्टे पाँव पालने में। माँ इसकी तरह गई थी थोड़ी। क्या मजाक बनाते रहते हैं। हमको किस चीज़ का? जस्ट एक सच्चाई बताई। सर आप सही देखो मेरा कहने का मतलब है और पता करें सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें देखो पाथ ऑफ लाइट नहीं दिख रही, इसको थोड़ा और पता करें। कोई बात तो करना क्या जाते हैं?
सब कुछ अब एक दूसरे को सारा गड़बड़ मैंने मिक्सर में चिराग तुम्हारे कोई गाड़ी आ रही है। चलो अब देखो, कहने का मतलब है कि किसमें पाथ ऑफ लाइट दिखेगा। एक हमारे पास डिटॉल सॉल्यूशन है, क्या इसमें पाथ ऑफ लाइट दिखेगा? सर मेरे को दिख रहा है हाथ पर आपके हाथ पे, ऐसा नहीं है। सर आपके हाथ पे दिख रहा है। वो आगे तक लाइट जा रही है। इसमें पानी डालना है। हाँ सर देखो, फिर से दिख गया। फिर उधर से लाइट जा रहा है। सर आप करना क्या चाहते हो समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो। मैं एक सोल्यूशन बना रहा हूँ जिसमें पाथ ऑफ सर आप लाइट बस पोटेशियम पर मैग्नेट, हाँ अभी भी सर आप थोड़ा काम सर पास सर आप क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट को खराब करने वाला हूँ। ठीक है, तो दूसरे में डालें। सर देखो फिर से आज मैं आगे पिछले दिन कोई बात क्या कर रहे हो सर? नहीं, एक डिटॉल सॉल्यूशन काट रहे बना। हो। कोई बात नहीं करो बड़ा ना फिर से डिटॉल सॉल्यूशन सर आप अरे बॉयज खुद ही को मार ले। सर बस और बता। चल अब देखो, अब इसमें पाथ ऑफ लाइट दिखा। ये सर एकदम साफ साफ दिख रहा है। और पाथ ऑफ लाइट मतलब आपको डेटॉल का इसमें तो अंदर में ही नहीं अब नहीं दिखाई देगा। यस सर ऐसा नहीं दिखाई देगा। दिखना चाहिए। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अब दिखना चाहिए। अबे मेरे को कोई एक गेम ला के दो यार। कितनी गोली अरे अब डेटॉल 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 डेटॉल। सर मैंने का मतलब है कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फ्रॉम विच मिक्सचर इज मेड, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। अब देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस हेटेरोजीनियस और दूसरा कौन सा है? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, it has uniform composition. It has uniform composition. It has non-uniform. non-uniform composition. It do not have दूसरी चीज, tyndall effect. अगर नमक के पानी को तुम फिल्टर पेपर से फिल्टर करो, फिल्टर पेपर तुम लोग जानते हो, Yes, Yes, sir. sir. जैसे न्यूज़पेपर या फिल्टर पेपर, कई बार यहाँ भी हमने दिखाया है, Yes, sir. तो वो वो रहा। फिल्टर आउट हो जाएगा। वो पानी जब छन के आएगा तो वो कैसा पानी होगा? फिल्टर पेपर से अगर तुम नमक का पानी छानोगे, ये फिल्टर है, और इससे अगर आप छान लो फिल्टर पेपर लगा के, ये फिल्टर पेपर है, तो आप देखोगे इस फिल्टर पेपर को लगा के छानने से कैसा पानी आएगा? का कौन बना सर करते इसमें से करते थे। ऐसे डाल दिया तो जो पानी गिरेगा वो भी नमकीन होगा। लेकिन जो सम कंपोनेंट्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, जैसे सैंड इन वाटर को डालोगे तो क्या सैंड भी नीचे आ जाएगा फिल्टर पेपर? No, sir. चौक इन वाटर को डालोगे तो क्या चौक भी आ जाएगा? No, sir. तो बोलो क्या सभी कंपोनेंट्स इसमें पास हो जाते हैं? No, sir. इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। जैसे नमक पानी में है तो नमक के पार्टिकल क्या तुम आंखों से देख सकोगे? No, sir. लेकिन चौक को देख सकोगे? Yes, तो sir. देख सकोगे। इट कैन नॉट बी seen with naked eye. Its component can be seen with, बोलो बात समझ में आई? बहुत छोटे होते हैं। क्या तुम्हें कॉपर सल्फेट के दिख रहे हैं? लेकिन इसमें किसी किसी में दिख जाते हैं, जैसे सैंड इन वाटर, चॉक इन वाटर में तो दिख जाते हैं। तो लिखो, साइज ऑफ पार्टिकल कितना है? Very small. करेक्ट।
is less than 1 nanometer. नैनोमीटर कितना होता है? नैनोमीटर का मतलब है 10 to the power 9 मीटर, इसी टू 1 नैनोमीटर। और इसके साइज ऑफ पार्टिकल क्या है? इट्स साइज ऑफ पार्टिकल इज मोर देन 1 नैनोमीटर, यानी 1 फुल फॉर्म क्या है? नैनोमीटर। और उसको और तोड़ लो तो कितना होगा? 10⁻⁹ तीसरी चीज देखो, अगर इसमें तुमने लाइट डाली तो वो टिंडाल इफेक्ट नहीं देगी। पाथ ऑफ लाइट कैन नॉट बी सीन, दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस वाले में जैसे हमने यहाँ देखा, सो पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। इट देखो, पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, लाइट इज नॉट विजिबल, नो टिंडाल इफेक्ट, so no does not give Tyndall effect. Tyndall effect, ये सबसे पहले मिस्टर टिंडाल ने ये चीज देखी थी, तो उनके नाम पे इसका क्या नाम पड़ा? पाथ ऑफ लाइट Path of light is visible, so it gives Tyndall effect। इसलिए इसे क्या कहेंगे? टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट। अगला एक पॉइंट बोलो सोनल। करेक्ट, ये स्टेबल होगा और एक यस, इट इज वेरी स्टेबल इन नेचर, इन नेचर, सो कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन। मालूम ही है, तो यही बचा ही था, ट्रू सोल्यूशन। और कौन सा बचा है? ठीक है, इट इज लेस स्टेबल और नॉट स्टेबल, तो क्या होगा? इट इज आइदर लेस स्टेबल और नॉट स्टेबल। All components pass through filter paper. Some components do not pass through filter paper. All components pass through filter paper. जबकि इसमें क्या है? Some components, तो सारे हेटेरोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं उनके पार्टिकल्स होते हैं 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं। हेटेरोजीनियस में सबके 1 से ऊपर होते हैं। पास थ्रू फिल्टर पेपर। इतनी बात हो गई। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Differentiate between metals and non-metals. देखो, मेटल एंड नॉन मेटल तो तुमने नहीं पढ़ा? एलिमेंट क्या है? Differentiate between metal and नॉन मेटल्स। non-metal. Metals कैसे होते हैं? These are Shiny. lustrous. लेसर और शाइनी। और ये क्या होंगे? दे आर नॉन लेसर। These are non-lustrous या dull appearance. सर कुछ मेटल्स तो लेकिन डल भी होते हैं ना, मेटल्स भी लक्ष्यर होते हैं। Have shiny appearance. इसमें कैसा appearance होगा? शाइन। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। If beaten, if मेलेबल। hammered, Malleable. अगर इसे hammer करो, malleable then में ductility भी होती है। can be beaten into sheet. दे आर मेलेबल। दे आर They are मेलेबल। malleable. Sheets. These are malleable. Non-malleable. If hammered, they turn in. They broke and turn into pieces. ठीक है, ये malleable नहीं होंगे. These are Ductile. ductile. These can be drawn. बहुत अच्छा.
into wires. पहले से सब बता रही है, ऐसे पहले से कैसे बता रही है? ये सब बिहार से सीखते हैं क्या? No, these can be drawn into wires. So ductile. और ये क्या है? These are non-ductile. Non-ductile होते हैं। ये non-ductile है। Metal and non-metal. मेटल क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर। These are, if hammered, it breaks into pieces. ये टुकड़ों में टूट जाएगा। So is fragile. फ्रेजाइल आप बोलना चाहो तो आप ब्रिटिल बोल दो, भंगुर। ब्रिटिल, इसको क्या कहते हैं? भंगुर। सही है, टूट जाता है। इट इज नॉन फ्रेजाइल। जबकि ये क्या है? इट इज नॉन फ्रेजाइल। It has good tensile strength. It can bear load. ये क्या लोड bear कर सकता है? यस यस। So it has. अब कोयले का पुल तुमने कहीं देखा है? देखो, दुनिया बहुत बड़ी है। It has good tensile strength. जबकि it has poor tensile strength. It cannot bear load. It cannot bear, ये लोड bear नहीं कर सकता। They are sonorous. These if banged, they produce ringing sound. अगर इन्हें bang करो, these produce ringing sound. और ये क्या है? So sonorous, ये गुंजन पैदा करते हैं। So sonorous, है ना? गुंजन आपने नहीं देखी इसकी? वो हमने सुनी तो बाउल, थी। रिंगिंग बाउल बजाया था कि नहीं? तो उससे ना बजाएं। So these are non-sonorous. इनमें गुंजन की आवाज नहीं आती, ठीक है? तो आप समझ पानी श्रेया, ऐसी आवाज आएगी। बजा दो फिर। समझ नहीं सर? आ रही आवाज? आवाज आ रही है ना? गुंजन की। So यह सिंबल्स को बजा लो। It is good conductor of heat and electricity. It is heat and electricity. It is bad conductor of. ये तो निशान सब जानता है, ऐसे कैसे जान गए ये? Heat and ठीक है। These are mostly of silver Silver. and grey color. These are इसकी हाइट इसके mostly silver और grey, In color. जबकि these are Colorful. ये रंगीन होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। कलरफुल। सर ऐसे तो इतने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। करेक्ट। जैसे कि श्रेया ने बताया, इट इज फॉर ऑल, इसका ज्ञान सबके लिए। It has high density, high melting point, high boiling point, so mostly solid. It has high density, high melting point, and high boiling point. So mostly क्या होते हैं?
कौन सा एक मेटल है जो लिक्विड है? करेक्ट। जैसा कि मरकरी, बहुत ये सब जाना। गैलियम। देखो वो नॉन मेटल का नाम बताने लगा चित्रांश, जबकि उसने बोल दिया मरकरी। कितनी बड़ी बात है। गैलियम मेटल क्या का है? लिक्विड बता रहे हो, नॉन मेटल बता रहे सर इसमें गैलियम भी है क्या? हो। गैलियम भी आएगा, गैलियम, फ्रांसियम, सीजियम और मरकरी। एक तो फिर भी उसने बताया। तुम सब उधर से देख देख के बता रहे हो। मेटल में जो ब्लू ब्लू कलर के हैं, सब उन्हीं का नाम तुम बता रहे हो। ये देख देख के बता देता है। अब देखो इसने वही सब नाम बताए। जो मेटल में ब्लू कलर का गैलियम था, सीढ़ी के इधर सब मेटल है, इसने गैलियम देख लिया, हैराजियम यानी मरकरी देख लिया, सीरियम फ्रांसियम। देखो ना, ये सब लोग चीटर हैं। सर मुझे तो आते थे, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। लो डेंसिटी, क्योंकि 4 ही ब्लू है मेटल में, उन चारों के नाम इसने बता दिए। सीजियम, फ्रांसियम पहली लाइन में, 12वीं लाइन में हैराजियम यानी मरकरी, और 13th लाइन में गैलियम। नो डेंसिटी, नो मेल्टिंग पॉइंट, नो बॉइलिंग पॉइंट, मोस्टली गैसेस। लो उसने ब्रोमीन भी बता दिया। ब्रोमीन तो मेटल, नॉन मेटल्स है ना। मोस्टली कैसा ही है, गैस है। मोस्टली क्या है, गैसेस। गैसेस। एक लिक्विड चलो। ब्रोमीन। आपको क्या करना है, राइट 4 डिफरेंसेस ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड। पहला है डिफाइन टिंडाल इफेक्ट, और दूसरा पढ़ाया नहीं है सर, आप पूछिए। इफ पाथ ऑफ लाइट, ठीक है। अब इफ पाथ ऑफ लाइट थ्रू ए सॉल्यूशन इज विजिबल, इट इज कॉल्ड टिंडाल इफेक्ट। पाथ ऑफ लाइट ये चीजें उसमें आप क्या पढ़ना चाहती हैं, ठीक है। सर पाथ ऑफ लाइट थ्रू ए सॉल्यूशन इज विजिबल, सॉल्यूशन है, उसमें से उसे क्या कहेंगे, टिंडाल इफेक्ट। मतलब कोई सॉल्यूशन में से अगर लाइट दिख रही है तो वो टिंडाल है। Between mixture and compound, सर थ्रू अ सॉल्यूशन। if path of light through a solution is visible, compound and mixture, यही तो लिखना है। बस यही करो, 5 मिनट का काम है, क्योंकि अभी अगली क्लास होने वाली है, तुरंत लिख जाओ। 10th को पता ना चले 8th की क्लास हुई, फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो लोग घर में कह देंगे क्या करेंगे कि 8th के बाद हमें पढ़ा रहे हैं। मुझे वाली किसकी ज्यादा